In this video, we are going to start with important questions of rationalization. It is in continuation to the previous video where we had done important questions. This is part 2, and if you see, all questions from NCERT exemplar. So all the questions in this video have been taken from NCERT exemplar, which are little longer ones, and they all belong to the last exercise. Okay, so let's start doing them. The first question is 7 root 3 over root 10 plus root 3 minus 2 root 5 over root 6 plus root 5 minus 3 root 2 over root 15 plus 3 root 2. अब इस क्वेश्चन में हमें नॉर्मल रैशनलाइजेशन प्रोसेस करना है, बट हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि देयर आर 3 टर्म्स. सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिवाइड दिस होल क्वेश्चन इनटू 3 पार्ट्स. पहले पार्ट को हम 1 लिख देते हैं, देन 2 एंड देन 3. हम तीनों पार्ट्स को इंडिविजुअली रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद हम इसको इकट्ठा सिंप्लीफाई कर देंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट. पहले वाले को 7 रूट 3 अपॉन रूट 10 plus root 3. What I will do, I will rationalize, that is multiply and divide root 10 minus root 3 over root 10 minus root 3. ये आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा? We will have 7 root 3 into root 10 minus root 3. यहाँ पे क्या हुआ? We are multiplying the numerators, right? In denominator हमेशा हमें a square minus b square होता है, मिलता है, right? So that means root 10 square minus root 3 square, right? इसको सॉल्व करते हुए क्या मिलेगा? 7 is a rational quantity which gets multiplied with root 3 and root 10. तो root 3 और root 10 मिलके हमें देंगे root 30. Okay? Next, 7 root 3 into root 3. तो अब root 3 into root 3 is 3. तो 7 into 3 मिल जाएगा हमें 21. डिनोमिनेटर में we have root 10 square which gives us 10 because root 10 into root 10 gives us 10. Similarly, root 3 square, that is 3. What do we get? न्यूमरेटर में यहाँ पे कोई चेंज नहीं है because we do not have any like terms over here. तो न्यूमरेटर हमारा ऐसे ही रहेगा. डिनोमिनेटर में we have 10 minus 3 which is 7. अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? That 7 is a common factor in numerator. Okay, so मैं उसको बाहर लूंगी and that leaves us with root 30 minus 3. नीचे भी 7 वो कैंसिल हो जाएगा and that leaves us with root 30 minus 3. अभी ये मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है. Okay, let's start solving the second part which is 2 root 5 over root 6 plus root 5. 2 root 5 over root 6 plus root 5. अब इसको भी मैं root 6 minus root 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगी, राइट? सिमिलरली अभी न्यूमरेटर में हमें क्या मिलेगा? 2 root 5 getting multiplied with root 6 minus root 5 और डिनोमिनेटर में a square minus b square, that gives us root 6 square minus root 5 square, right? Okay, अब मल्टीप्लाई करते हैं 2 root 5 into root 6. So वो हमें देगा 2 root 30. root 5 into root 6 हमें root 30 दे रहा है, right? उसके बाद हमारे पास है 2 root 5 into root 5, मतलब root 5 का स्क्वायर which is just 5. So 2 into 5 gives us 10. Denominator में we are getting root 6 का square is 6 and root 5 का square is 5. So this gives me 2 root 30 minus 10 because denominator में तो 1 बचा था. So I am just not writing anything over there. This was the second part. Now, what was the third part? 3 root 2 over root 15 plus 3 root 2. 3 root 2 over root 15 plus 3 root 2. This was the third part. So let's start rationalizing it. We will multiply with root 15 minus 3 root 2 and divide also with the same root 15 minus 3 root 2. Okay. अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन होगी
3√2 into √15 minus 3√2 और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो √15 स्क्वायर माइनस 3√2 स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई होके 3√2 √15 से मल्टीप्लाई होगा एंड दिस विल गिव मी 3√30 माइनस, अब यहाँ पे हम अगर ध्यान दें हमें क्या मिल रहा है 3√2 इंटू 3√2 मतलब 3√2 का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर इज 9, √2 का स्क्वायर इज 2, सो 9 इंटू 2 इज 18। डिनोमिनेटर में √15 का स्क्वायर इज 15 और हमने देखा कि 3√2 का स्क्वायर इज 18, राइट? सो व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग 3√30 minus 18 over 15 minus 18 is -3. अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, राइट? So what are we getting? We are having 3 as a common factor in numerator. मैं उसको बाहर ले लूंगी and that leaves me with √30 minus 6 divided by -3, right? ये कैंसिल हो गया। अब एक -1 बचता नीचे जिसको मैं ऊपर लूंगी और उससे हमारा 6 पॉजिटिव हो जाएगा और √30 नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस कंप्लीट्स द रैशनलाइजेशन ऑफ ऑल द 3 टर्म्स, राइट? अब हमें सबको कलेक्ट करना है, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। द फर्स्ट आंसर वाज √30 minus 3, माइनस करना है हमें सेकंड का आंसर which was 2√30 minus 10, फिर से हमें सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड का आंसर which is 6 minus √30। तो इस स्टेप में मैंने सिर्फ तीनों आंसर्स कलेक्ट किए हैं एंड नाउ अब हमें इनको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सो अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे हम एंड दिस गिव्स अस √30 minus 3 minus 2√30 और ये दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, सो +10 -6, फिर से ये दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे प्लस √30। ओके, नाउ √30 plus √30 gives us 2√30. What do we have? -3 plus 10, that is +7, plus 7 minus 6, that is +1, और उसके बाद हमारे पास बचता है -2√30 जिसको अभी हमने यूज नहीं किया था। अब यहाँ पे 2√30 पॉजिटिव 2√30 नेगेटिव, तो दोनों कैंसिल हो गए एंड द फाइनल आंसर वी आर लेफ्ट इज जस्ट 1। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा था बट केयरफुली हमने उसको रैशनलाइज किया और हमारा एक सैटिस्फाइंग आंसर आ गया विच इज 1। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास √2 की वैल्यू गिवन है विच इज 1.414, √3 की वैल्यू गिवन है 1.732। हमें वैल्यू निकालनी है 4/3√3 minus 2√2 plus 3/3√3 plus 2√2। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे नॉट इन एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बट मेनी अदर बुक्स लाइक आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल, जहां पे आपको √2, √3, √5 या √10 की भी वैल्यूज डेसिमल्स में गिवन होती हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमें हमेशा पहले रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना है और लास्ट स्टेप में व्हेन वी आर जस्ट लेफ्ट विद द फाइनल आंसर, जब कुछ भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है तब हमें वैल्यूज को डेसिमल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना होता है। उससे पहले नहीं करना, पहले हम रैशनलाइज करेंगे। सब स्टार्टिंग में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट मत करना, आंसर आपका शायद ठीक आ जाए। एक उसका ड्रॉबैक क्या होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्टेप्स के वर्किंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेकेंड, आपकी डेसिमल कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो पूरी मेहनत करोगे लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे बिकॉज वो देखना चाहते हैं कि आप रैशनलाइज कैसे करते हो और रूट की वैल्यूज को कैसे यूज करते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट एंड वी विल स्टार्ट विद द रैशनलाइजेशन। अब यहाँ पे भी हम देखें तो हमारे पास देयर आर 2 ग्रुप्स, राइट, विद 2 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। सो हम इसको फर्स्ट और सेकंड में क्लासीफाई कर देंगे
and we will start with the rationalization of each group individually. तो पहले ग्रुप को rationalize करते हैं. We have 4 over 3 root 3 minus 2 root 2. Rationalize करते हुए मुझे क्या मिलेगा? I will multiply and divide with 3 root 3 plus 2 root 2 over 3 root 3 plus 2 root 2. अब यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनली डिनोमिनेटर में माइनस था, इसलिए मैंने प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल हैव 4 into 3 root 3 gives me 12 root 3. Then 4 multiplied with 2 root 2. So that also gives me 8 root 2. डिनोमिनेटर में मिलेगा हमें 3 root 3 का स्क्वायर और 2 root 2 का स्क्वायर. राइट, न्यूमरेटर में हमने सिंप्लीफाई कर दिया ऑलरेडी, उसमें अभी कुछ नहीं बचा करने के लिए. सो उसको मैं ऐसे लिख रही हूँ 12 root 3 plus 8 root 2. अब 3 root 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर इज 9, root 3 का स्क्वायर इज 3. सो 9 into 3 becomes 27. 2 root 2 का स्क्वायर, बाहर वाले 2 का स्क्वायर इज 4, root 2 का स्क्वायर इज 2. सो 4 into 2 is 8. Now 27 minus 8 is 19. So what we have, 12 root 3 plus 8 root 2 divided with 19. ये पहली टर्म को रैशनलाइज करके हमें एक आंसर मिला, राइट. अब हम सेकेंड ग्रुप को रैशनलाइज करेंगे, विच इज 3 over 3 root 3 plus 2 root 2. अब रैशनलाइज करेंगे तो हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 root 3 minus 2 root 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड भी करेंगे. ओके, न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा? 3 into 3 root 3. This gives me 9 root 3. Then this 3 into 2 root 2 also giving me minus 6 root 2. डिनोमिनेटर में अगर अब आप देखो, ये सेम डिनोमिनेटर है जो पहला वाला था. फर्क इतना है कि यहाँ पे हमारे पास पहले प्लस है, बाद में माइनस है, राइट. लेकिन बन तो उन्हीं टर्म्स का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है. सो अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशंस नहीं करूंगी, बिकॉज अब मुझे पता है कि 3 root 3 का स्क्वायर इज 27, 2 root 2 का स्क्वायर इज 8. सो 27 minus 8 is 19. अब मैं यहाँ पे सीधा 19 लिख रही हूँ. ओके, सो अब हमें क्या करना है? दोनों आंसर्स मिल गए एंड वी हैव टू ऐड देम, राइट. सो आई विल ऐड. लेट्स स्टार्ट विद दैट. वी हैव 12 root 3 plus 8 root 2 divided with 19 plus 9 root 3 minus 6 root 2 divided with 19. Okay, so what do we get now? अब यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर्स है, एलसीएम नहीं लेने की जरूरत हमें. वी कैन सिंपली ऐड द न्यूमरेटर्स. सो नाउ व्हाट वी हैव, 12 plus 9 करेंगे क्योंकि दोनों के पास root 3 है. तो 12 plus 9 gives me 21 root 3. Then 8 root 2 minus 6 root 2, that is 2 root 2 divided with 19. अब अगर हम देखें, ये हमारा लास्ट स्टेप है. ओके, बिकॉज इसके अंदर अब हमारे पास और कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं बची. तो हम इस स्टेप में वी विल स्टार्ट विद द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द root 3 and root 2 वैल्यूज. अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो आई एम जस्ट राइटिंग द स्टेप ओवर हियर. 21 into 1.732 root 3 की वैल्यू वैसे इरेशनल है, बहुत लंबी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू होती है, लेकिन क्वेश्चन में हमें 3 डेसिमल डिजिट्स तक गिवन था, विच इज 1.732, और रूट 2 की वैल्यू गिवन थी 1.414. तो वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए एंड नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस. सो व्हाट वी गेट ओवर हियर इज 21 into 1.732 is 36.372. ओके, अब इसके बाद वी विल डू 2 into 1.1414.
तो ये क्या देगा हमें 2.828। ये यहां पे आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशंस जाएंगी, लेकिन इन स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं। ओके, सो अब हम इस चीज में सिर्फ इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो दिस गिव्स मी 39.2। इन दोनों को ऐड करके हमें मिल रहा है 39.2 डिवाइडेड बाय 19 एंड दैट गिव्स मी द फाइनल आंसर व्हिच इज 2.06। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर ओवर हियर। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा रैशनलाइजेशन का नॉर्मल प्रोसेस था, लेकिन द डिफरेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन वाज सब्स्टिट्यूट करनी थी हमें √2 और √3 की वैल्यूज। कई क्वेश्चंस ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जो आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में होगा √3, √2, √5, √10 सबकी वैल्यूज गिवन होंगी। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर वो सारे रूट्स यूज हों या लास्ट तक वो सारे रूट्स बचे ही बचे। तो इसीलिए स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जो भी वैल्यूज, जो भी रूट्स हमारे पास बचते हैं एंड तक। यहाँ पे हमने देखा स्टार्टिंग से हमारे पास √3 और √2 एग्जिस्ट कर रहे थे, तो हमने दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड हमारा फाइनल आंसर आ गया 2.06। ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें यहाँ पे गिवन है कि a इज इक्वल्स टू 3 प्लस √5 ओवर 2। ओके, हमें फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ओके, इस क्वेश्चन में हमारे पास a स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी a स्क्वायर है। मतलब अगर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 3 प्लस √5 अपॉन 2, उसको हम स्क्वायर करेंगे और फिर ऐड करें, क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। ओके, जस्ट सी, ध्यान से देखना क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह के क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में भी एग्जिस्ट करते हैं विद क्यूबिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे हम रिवर्स आइडेंटिटी का यूज करेंगे। और कैसे करेंगे? अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a माइनस 1/a होल स्क्वायर। ओके, दिस इज जस्ट लाइक आपकी क्लास 8 की आइडेंटिटी विच इज a माइनस b होल स्क्वायर। फर्क इतना है कि b की जगह यहाँ पे मैंने 1/a ली है। सो अब यहाँ पे हमें क्या मिलता है? इट गिव्स मी a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a प्लस 1/a स्क्वायर। राइट, a और a ये वाले कैंसल हो गए। राइट साइड में मुझे मिलता है a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/a स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं इस -2 को उधर ले जाऊं तो राइट साइड में मेरे पास सिर्फ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बचेगा, जो कि हमारा डिजायर्ड एक्सप्रेशन है। राइट, so let's do that. I will have a minus 1/a whole square plus 2. This is equals to a square plus 1/a square. तो अभी हमने सिर्फ a की टर्म्स में काम किया क्योंकि हमें अपनी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करना था, ताकि जब हमारे पास रूट बाद में आए चीजें हमारे पास सिंप्लीफाइड रहे। बहुत सारे लंबे स्क्वायर्स करना पड़ेगा अगर रूट के साथ, तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। उस चीज को इजी करने के लिए हमने यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा स्टेप्स किए जिससे कि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। अब हम अपने a माइनस 1/a पे काम करेंगे। ओके, हमारे पास a ऑलरेडी है। राइट, व्हाट आई वांट 1/a। तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे? 1/a का मतलब जो a था वो मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए, और यहाँ पे मेरा a वॉज ऑलरेडी अ रैशनल एक्सप्रेशन, मतलब कुछ न्यूमरेटर था कुछ डिनोमिनेटर था। तो 1/a करने के लिए मैं उसको फ्लिप कर दूंगी। आई विल डू द रेसिप्रोकल। 2 ऊपर चला जाएगा और 3 प्लस √5 नीचे आ गया। अब हमारे पास रूट डिनोमिनेटर में आ गया, तो हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए 3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल है, विच इज 2 इंटू 3 माइनस √5। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके मिला 6 और 2 इंटू √5 मिल गया जस्ट 2 √5। डिनोमिनेटर में क्या है? 3 इंटू 3 दैट इज a स्क्वायर, 9 √5 का स्क्वायर इज 5। सो व्हाट वी गेट इज 6 माइनस 2 √5 डिवाइडेड विद 4। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वी विल जस्ट टेक दैट आउट एंड कैंसिल। हमें क्या मिलता है? 2 बाहर आ गया और 3 माइनस √5 बचता है अंदर अपॉन 4। ये कैंसिल हुआ।
The final answer is 3 minus root 5 over 2 and this is just for 1 by a. अब हमें किस चीज पे काम करना है? I want this complete value, right? a minus 1 by whole square plus 2. तो उसमें हम सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे. पहले मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख रही हूं. It was a minus 1 by a, right? Whole square plus 2, right? तो a क्या था? It was 3 plus root 5 over 2. 1 by a क्या आया हमारे पास? 3 minus root 5 over 2. यहां पे एक ब्रैकेट रखा बिकॉज माइनस है बाहर. होल स्क्वायर प्लस 2, राइट? अब सेम डिनोमिनेटर्स हैं दोनों के 2, सो वी विल जस्ट सबट्रैक्ट. हमें एलसीएम की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे लेने की. सो वी गेट 3 प्लस रूट 5 माइनस 3. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2. होल स्क्वायर प्लस 2, राइट? वी कैन सी 3 और 3 कैंसिल हो गए. अब क्या बचता है अंदर? रूट 5 प्लस रूट 5 मतलब 2 रूट 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस 2. 2 और 2 कैंसिल हो गए. रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2. रूट 5 का स्क्वायर इज 5 प्लस 2 which is 7 and this is the final answer for a square plus 1 by a square. तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि स्टार्टिंग में एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को उल्टा करके, दैट इज रिवर्स आइडेंटिटी लगा के, हमने अपनी कैलकुलेशंस को कितना सिंपल किया कि स्क्वायर करने पे हमारे पास एक छोटा सा नंबर बचा विच इज जस्ट रूट 5. इतने बड़े से एक्सप्रेशन के बावजूद भी हमारे पास सिर्फ एक रूट 5 बचा. सो इस क्वेश्चन को हम इसी तरह से करेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस इजी रहेंगी. अदरवाइज इट कैन टर्न वेरी क्योटिक. ओके, नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन over here in this video, which is, अब हमारे पास यहाँ पे x के लिए एक पूरा एक्सप्रेशन गिवन है which is रूट 3 प्लस रूट 2 ओवर रूट 3 माइनस रूट 2. एंड सिमिलरली y के लिए भी एक एक्सप्रेशन गिवन है रूट 3 माइनस रूट 2 ओवर रूट 3 प्लस रूट 2. और उन्होंने मांगा क्या? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इस क्वेश्चन में कई बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हुए स्टार्टिंग में ही पूरे एक्सप्रेशन को स्क्वायर करके आइडेंटिटीज लगाना स्टार्ट कर देते हैं. वैसा काम हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि अगेन अगर हम इतने बड़े से एक्सप्रेशन को स्क्वायर करने बैठेंगे, आइडेंटिटीज लगाएंगे, कैलकुलेशंस गंदी हो जाएंगी एंड हम उसी अपने जाल में फंस जाएंगे, राइट? एंड सिमिलरली वाई स्क्वायर पे भी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे. सबसे पहले हम इसको सिर्फ रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि जब हम रैशनलाइज करेंगे हम ये देखेंगे हमारे एक्सप्रेशन बहुत छोटे हो गए. स्क्वायर तो करना है लेकिन छोटे एक्सप्रेशंस को. ओके, so let's start. X is equals to root 3 plus root 2 over root 3 minus root 2. Rationalize करने के लिए root 3 plus root 2 से multiply and divide. न्यूमरेटर में क्या मिलता है? root 3 plus root 2 का होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर में root 3 का स्क्वायर माइनस root 2 का स्क्वायर. ऊपर हमारे लग जाएगी आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर. तो उसको लगाते हुए a स्क्वायर इज रूट 3 स्क्वायर, एक एक स्टेप लिख के दिखा रही हूँ, प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर ओवर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3. रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2. रूट 3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 2 रूट 6 बिकॉज रूट 3 इंटू रूट 2 इज रूट 6 प्लस 2. डिनोमिनेटर में क्या बचा? सिर्फ 1. और ये देखो हमारे पास एक एक्सप्रेशन छोटा सा आ गया विच इज 5 प्लस 2 रूट 6. डिनोमिनेटर फिनिश. जब हम एक्स स्क्वायर करेंगे हम इसको करेंगे. ओके, अब सिमिलरली हम y को रैशनलाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. y इज इक्वल्स टू रूट 3 माइनस रूट 2 ओवर रूट 3 प्लस रूट 2. ओके, इसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं तो रैशनलाइज करते हुए इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे रूट 3 माइनस रूट 2, राइट? न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? रूट 3
minus root 2 whole square over root 3 square minus root 2 square. अब यहाँ पे a minus b whole square की आइडेंटिटी लगेगी. So which is 3 minus 2 root 6 plus 2. अब मैंने यहाँ पे एक एक टर्म नहीं लिखा, सिर्फ आइडेंटिटी डिफरेंट थी इसलिए बीच में माइनस आ गया. डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा? 3 minus 2. सो यहाँ पे मिल गया 5 minus 2 root 6. डिनोमिनेटर 1 था, सो आई एम नॉट राइटिंग इट. अब फाइनल, अब हमें करना है x square plus y square. This is what they had asked over here, right? So let's start squaring. We had 5 plus root 2 root 6 का square plus 5 minus 2 root 6 का square. अब यहाँ पे हमें सिंपल सी आइडेंटिटी लगानी है a plus b whole square और सेकंड में a minus b whole square, right? तो पहले लगाते हुए मिलेगा 5 का square which is 25, 2 into a into b, that is 2 into 5 is 10, 10 into 2 is 20, 20 root 6, 2 root 6 का square क्या मिलेगा? 4 into 6 which is 24. Okay, अब similarly right वाले एक्सप्रेशन में that is y square, सेम टर्म्स रहेंगी, सिर्फ मिडल टर्म नेगेटिव हो जाएगी. इट वॉज 20 root 6 प्लस 24. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इरैशनल टर्म्स तो हमारी कैंसिल भी हो गई. 20 root 6 और 20 root 6 कैंसिल. फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ऐड करना है सिर्फ 25 प्लस 25, 50, 50 प्लस 24 प्लस 24, 48 ऐड करना है 50 में, दैट इज 98. स्क्वेयरिंग भी आसान हो गई. यहाँ पे रैशनलाइजेशन तो हमें आती ही है अभी तक. तो हमने पूरा ओवरऑल क्वेश्चन देखा विच वॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन हमने उसको स्टेप बाय स्टेप इजीली करते हुए अपनी कैलकुलेशंस को कितना आसान किया. I hope you have understood each and everything taught in this video. So do hit the like button and happy learning.